Hello, welcome back students. This is Kriti Malav. I am your legal studies teacher. I want to tell you in the April month we had completed our first unit. Now we will start the unit 2. Unit 2 is topics of law. Before starting the new unit, we will discuss about the syllabus in the topic of law. We will discuss about headlines related to topic of law. That first topic is topic of law. In this topic of law, there are 5 types. We had divided 5 types. Like, first is property law, second is contract law, third is tort law, fourth is criminal law, and fifth is administrative law. In the property law, we will discuss about the property. In the contract law, we will discuss about the contract, tort, criminal, etc. First topic is contract law. In the contract law, there are different types of contracts. Like offer, जब हम किसी को ऑफर करते हैं, that is also contract. Second is acceptance, कोई इसे एक्सेप्ट करता है. Third is consideration. Fourth is capacity to contract. Fifth is free consent, हम पूरी आज़ादी है अपना कंसेंट करने की. अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डिस्चार्ज, रेमेडीज एंड impossibility. Contract is a legal binding agreement. Second is tort law. Tort law means we will discuss in the tort law sources of tort law, kinds of wrongful act, kinds of harms, purpose of tort law. Tort means civil wrong, and tort law refer the set of rules that makes available remedies to individuals who have suffered harm or injury by unreasonable acts of another. In the tort is kinds of wrongful act, हम उसमें wrongful act भी पढ़ेंगे. kinds of harms, उसमें harms भी पढ़ेंगे. And what is the purpose of the tort law? Third is criminal law. In the criminal law, we will discuss about categories of crimes, stages of crimes, elements of crimes, criminal law in India. First, we will discuss about crime. Crime is an action of or omission which constitutes an offense and is punishable by law. क्राइम वो चीज़ है जो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल होती है. द क्रिमिनल लॉ इज सेट ऑफ रूल्स दैट restrain the offense and punishes the offenders. The law that governs the criminal law, it is mentioned in the Indian Penal Code 1860,
Criminal Procedure Code. Third is administrative law. Administrative law. In this law, we will discuss about the sources of the administrative law, objectives, reasons, types, scopes, principles, control and remedies. Students, what is the meaning of the administrative law? Administrative law is a set of rules that governs the activities of administrative agencies of government. ये ऐसा लॉ है जो रूल्स का मतलब it is a set of rules that governs the activities of administrative governance. Next is property law. Property law. In the property law, we will discuss meaning of property, features of property, types of property, constitutional provision of property rights, examples of movable and immovable property, and meaning of property law. In this law, we will discuss about the meaning, what is the features, and how many types of the property. In the constitution provision, which rights are given for the property law. There is the two types of examples in the property law. First is movable and second is immovable. Let's come on to now we will start the meaning of the property. Property is the unit of land, any substance or even intellectually that essentially belongs to someone or to more than one person. प्रॉपर्टी लैंड की वो यूनिट है जो एक या दो लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है. What are the substantial properties of property? प्रॉपर्टी की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? There are the features like it is physical object which has some monetary value. एक physical object है जिसकी अपनी एक value होती है. Available publicly और privately, ये या तो publicly भी हो सकता है या privately भी हो सकता है. Must have enforceable rights, इसमें enforceable rights होना compulsory है. Aliens ऐसा it should be transferable, it should be registrable and indefeasible. Indefeasible means not subject of being lost or annulled or overturned. These are the properties of property. It means जो प्रॉपर्टी हम जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी इट शुड बी वैल्यूएबल, वो पहले वैल्यूएबल होनी चाहिए, पब्लिकली होनी चाहिए, एनफोर्सेबल राइट्स होना चाहिए, एलियंस होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड इंडेफिजिबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी and second is immovable property. Movable properties means those property can move from one place to another is called the movable property. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी हुई, जैसे ज्वेलरी, व्हीकल्स, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स, ये सारे प्रॉपर्टीज़ क्या हुए? मूवेबल प्रॉपर्टी. जो होते हैं वैल्यूएबल, ज्वेलरी इज़ वैल्यूएबल एंड व्हीकल्स इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल, बट these things are movable property. And which is immovable property?
Immovable means दो which the property which cannot be moved in one condition, जो मतलब एक कंडीशन में बिल्कुल भी मूव नहीं हो सकती, और एनी पॉइंट इन टाइम रेदर रिमेन्स स्टैंडिल, एक ही जगह पर कनेक्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी. लाइक हाउस, अपार्टमेंट, यूनिट ऑफ लैंड एंड benefits arising out of land and all other things permanently attached to earth etc. ऐसा लैंड का ऐसा पार्ट जो परमानेंटली लैंड के साथ अटैच्ड है और जिससे बेनिफिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो हम एक ही प्लेस पर होती है और दिस इज़ द वैल्यूएबल. लाइक कोई भी अपार्टमेंट हो सकता है किसी का, कोई भी लैंड की यूनिट हो सकती है, और ऐसी थिंग जिससे हमें वैल्यू, जो बहुत वैल्यूएबल होती है और साथ में उससे रिलेटेड जो हमें बेनिफिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी. What are the major types of property? There are two major types of property. Movable property comes in Sales of Goods Act 1930, और immovable property comes in Transfer of Property Act 1882. मूवेबल प्रॉपर्टी में अभी मैंने जो बताया, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूव हो सकती है वो मूवेबल आएगी, इमूवेबल में जो मूव नहीं हो सकती वो इमूवेबल आएगी. व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑन प्रॉपर्टी राइट? प्रॉपर्टी राइट में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी राइट का क्या प्रोविज़न है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12 चैप्टर 4 एंड आर्टिकल 300A states that no person shall be deprived of his property. That is called that is mentioned in our constitution. What are the examples of movable property? Like right to worship. जैसे कोई पंडित होते हैं, उनको पंडित करने मतलब आज उनके पास ये राइट है, बाद में जाकर वो अपने इस चीज़ को, प्रॉपर्टी को, अपने इसको राइट को चेंज कर सकते हैं. कॉपीराइट, किसी कंपनी का कॉपीराइट. इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप, फर्म पार्टनरशिप में चेंज कर सकते हैं. राइट टू गेट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए. गवर्नमेंट प्रॉमिसली नोट्स, गवर्नमेंट के कोई नोट्स. मशीनरी दैट नॉट परमानेंटली अटैच्ड ऑन द अर्थ, ऐसी कोई मशीन जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, जो कि क्रॉप्स हैं, ग्रास हैं, और स्टैंडिंग टिम्बर जो कि मूवेबल हो सकता है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी. कॉपीराइट, जैसे हम किसी कंपनी को लेते हैं, कंपनी के लिए हमारा जो अपना एक इंडिविजुअली हमारा जो कॉपीराइट होता है, वो कॉपीराइट हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे? दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ इंटरेस्टेड टू द एक्सचेंज, दैट इज़ कॉल्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी. एंड गवर्नमेंट प्रॉमिसली नोट्स, गवर्नमेंट के कोई नोट्स है, गवर्नमेंट के साथ जो प्रॉमिस हुआ, दैट इज़ द गवर्नमेंट प्रॉमिसली नोट्स. मेंटेनेंस तो आप सबको पता ही है, और जो परमानेंटली मशीन जो अटैच्ड नहीं है, जो मूवेबल हो सकती है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे. नेक्स्ट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी मैंने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वही होती है जो लैंड से रिलेटेड होती है, जो एक ही जगह पे अटैच्ड होती है. उसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कोई बिल्डिंग है. एंड राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी लैंड का, किसी अपार्टमेंट का कोई अगर रेंट आता है, दैट इज़ गिवन ट्रांसफर्ड बाय द अनदर पर्सन फॉर द रेंट टू कलेक्ट कलेक्ट रेंट, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट टू पे ऑन द प्लेस ऑफ लैंड्स, किसी भी लैंड का प्लेस को मतलब उसका राइट, इसका एक्सचेंज का. राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम द ट्री, ट्री से रिलेटेड जो ऐसे ट्रीज जिससे कोई प्रॉफिट होता है, बिजनेस होता है, वो उसको कलेक्ट करने का बिजनेस. राइट टू फिशरीज़, फिशरीज़ से फिशरीज़ को एक्सचेंज करने का. फिशरीज़ कौन सी हुई? उनका अपना जो फार्म है, उस फार्म को एक्सचेंज करने का. राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट्स एंड प्रॉफिट ऑफ लैंड,
किसी लैंड से आने वाला कोई भी प्रॉफिट like rent, any other profit, those are taken by the land. This is called the example of immovable property. Right to way on a place of land, land से कोई भी ऐसा कोई राइट जो कि लैंड से आ रहा हो. राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम द ट्री, ट्री से लाइक दोज ट्रीज आर बेनिफिशियल फॉर एनी मेडिसिन्स, for any furniture, so they can that is the type of the immovable property. And reversion of property leased. Property lease means जो प्रॉपर्टी को जो लीज है उसे हम चेंज करना, लीज पर जैसे कोई प्रॉपर्टी है चेंज करना, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द immovable property. And what is the meaning of that? Right to receive future rents and profit of land. ऐसा कोई राइट जो आगे आने वाले फ्यूचर में हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है. लाइक आज अगर किसी पर्सन ने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई अपार्टमेंट्स बनाए, उसमें जो लैंड टेनेंट्स जो रह रहे हैं, दे आर गिविंग द लैंड और दे आर गिविंग द रेंट. ओके, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो होल्ड दैट लैंड. That is also called the example of the immovable property. Next is a factory. A factory means like anyone is like Ambani, Tata. They started any factory and it is their right कि they are changing their rights to took over that factory. That is also example of the immovable property. I think you are thinking about what is property law. Property law is the set of rules that governs the value form of ownership, tenancy, etc. What is the meaning of the transfer of property? Transfer of property, it is mentioned in the section 5 of the Transfer of Property Act 1882. Transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future, या तो वो प्रेजेंट में भी हो सकता है या फ्यूचर, in one or more living person or to himself and one or more other living person, and to transfer of property is to perform such act. This is called the transfer of property. It means ऐसी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो सिर्फ लिविंग पर्सन में ही ट्रांसफ़र होती है, या तो वो प्रेजेंट में भी ट्रांसफ़र हो सकती है या फ्यूचर में भी ट्रांसफ़र हो सकती है. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ वन और मोर लिविंग पर्सन, जो एक या एक से ज़्यादा लोगों में ट्रांसफ़र हो सकती है. हु आर लिविंग पर्सन्स? लिविंग पर्सन्स एज पर द प्रोविज़न के अकॉर्डिंग लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन. लिविंग पर्सन वो हैं जिसमें एक कंपनी भी हो सकती है, मतलब कंपनी वो दोज आर रनिंग, दोज आर वर्किंग, दोज आर इन वर्किंग कंडीशन. लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल बॉडी भी हो सकती है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, या तो वो कॉर्पोरेट हो सकती है या नहीं. बट नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ or for the time being in force relating to transfer of property to or by companies associated or bodies of individuals. कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कोई भी वर्किंग कंपनी हो सकती है, कोई लिविंग पर्सन भी हो सकते हैं, लिविंग पर्सन के साथ भी एक्सचेंज हो सकती है, के साथ ही एक्सचेंज होती है, बट उसमें जो कंटेंट्स हैं वो लॉ के एनफोर्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल इफेक्ट एनी लॉ, और ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी मतलब इफेक्ट एनी लॉ, किसी लॉ को इफेक्ट करने वाला हो. टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो. दीज आर द कॉल द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी? इन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी there are 5 types. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में सेल्स, लीज,
gift, mortgage, or exchange. There are the 5 types are coming. These 5 points are coming in the transfer of property. Transfer of property should be sale, lease, gift, mortgage and exchange. सेल, उसे हम सेल भी कर सकते हैं, या तो वो लीज पर हो, या वो गिफ्टेड हो, मोर्गेज गिरवी हो, साथ में हम उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दीज पॉइंट्स. सेल मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सेल हुई हो और उसमें सेल के क्या डिस्क्रिप्शंस हैं वो सारे आएंगे. लीज, जैसे अपने ग्वालियर में सन सिटी है, सन सिटी का जो लैंड है दैट इज़ ऑन द लीज. गिफ्ट, दोज लैंड इज़ गिफ्टेड बाय एनी अदर पर्सन. मोर्गेज, some people require the money, so they are giving the mortgage. It can be transferred. Exchange, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर सकता है. These 5 types are coming in the transfer of property. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जैसे सेल्स है, ये सब हम अभी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हु कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी. एज पर सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 7 में मेंशन है, एवरी पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 एंड ऑफ साउंड माइंड. ऐसा पर्सन जो 18 ईयर्स का है और साउंड माइंड है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी. कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट हो और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए भी ऑथराइज्ड हो, और ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, जो अपने लिए नहीं, जो किसी और के लिए ट्रांसफ़र करता हो, दैट इज़ ऑल्सो ऑथराइज. इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र सच प्रॉपर्टी ईदर होली और इन पार्ट, या तो पूरा या उसका कोई पार्ट, इधर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, एब्सोल्युटली हो या कंडीशनली हो, इन द सर्कमस्टेंसेस, टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउ द प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. या तो वो प्रेस्क्राइब्ड हो या अलाउड मैनर में हो, दिस इज दैट पर्सन कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी. द पर्सन हु ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द ट्रांसफरर. जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है वो ट्रांसफ़र होता है. एंड द पर्सन टू होम द ट्रांसफ़र इज़ मेड इज़ कॉल्ड द ट्रांसफरी. और ऐसा पर्सन जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है वो होता है ट्रांसफरी. ट्रांसफरर कौन हुआ? ट्रांसफरर मीन्स द पर्सन हु ट्रांसफर्स द property, and transferee means the person to whom the transfer, that is called the transferee. How can property be transferred? हम प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? Though the as per the section 9, according to the section 9 of Transfer of Property Act, a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law. जो कि कैसा होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए. हाउएवर देयर आर सम इंस्टिटिवली डिफाइंड मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एज. उसमें क्या क्या डिफाइंस है? द मोड्स ऑफ प्रॉपर्टी वेराइज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. ये सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी की किस तरह से क्या वैल्यू है. इन द सेक्शन 9 द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, the transfer of property may be made without writing. या तो वह विदाउट राइटिंग हो सकता है या अकॉर्डिंग टू लॉ. अकॉर्डिंग टू लॉ तो होगा ही. इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ टेंजिबल, अगर प्रॉपर्टी टेंजिबल है, एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ लेस देन 100 रुपीज़, और उसकी 100 रुपीज़ से कम है,
that is irrespective of the value of the property, then transfer has to be made only by delivery, क्योंकि डिलीवरी के बाद ही होगी. Whereas for intangible property, that was the intangible property. Now we will discuss about the intangible property. Intangible property, irrespective of the value of the property, property valuable हो, transfer has to be made only be registered instrument, या तो वो registered instrument में ही हो. A registered instrument contains the record of the owner of the property, for example shares, bonds, etc. वो shares या bonds हो. What are the essential elements of valid transfer? In the transfer of property, the transfer should be between two or more living things, living persons. या तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ ट्रांसफ़र वैलिड होगा. The property that is going to be transferred should be free from encumbrance, मतलब उसके पूरी तरह से वो फ्री है, एंड बी ऑफ अ ट्रांसफरेबल नेचर, ट्रांसफरेबल नेचर के साथ हो. द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वेराइज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की वैल्यू वो वैल्यूएबल हो, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी उसमें मेंशन हो. द ट्रांसफ़र शुड नॉट बी फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट. ट्रांसफ़र कैसा नहीं हो, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन वाला नहीं होना चाहिए. द ट्रांसफ़र हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी मस्ट. कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, किसका मतलब कौन हो सकता है. बी कॉम्पिटेंट टू मेक द ट्रांसफ़र. बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए ट्रांसफ़र के लिए. बी एंटाइटल टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर रहा है दैट शुड बी एंटाइटल्ड बाय द पर्टिकुलर पर्सन. बी ऑथराइज्ड, और उस पर्टिकुलर लैंड पर्टिकुलर पार्ट के लिए वो ऑथराइज भी होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र. द ट्रांसफ़र शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफ़र. Necessarily, formalities like registration, attestation, etc. should be compiled with. वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो रजिस्ट्रेशन के साथ अटेस्टेड भी होना चाहिए और कंपाइल्ड भी होना चाहिए. इन द केस ऑफ कंडीशनल ट्रांसफ़र वेयर एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, द कंडीशन शुड नॉट बी इलीगल, immoral, impossible और opposed to public policy. कंडीशन ट्रांसफ़र के लिए क्या कंडीशंस हैं, उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, फुलफिलमेंट उसकी कंडीशंस जो हैं वो पूरी फुलफिलमेंट होना चाहिए. द कंडीशन शुड नॉट बी, और कौन सी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, एटसेट्रा. इलीगल, दोज आर अनलॉफुल, दीज कंडीशन शुड नॉट बी मेंशन देयर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन. Doctrine of election, it means, according to the doctrine of election, section 35 of the Transfer of Property Act, a party to the transfer cannot be accept as well as reject in the single transaction. जो पार्टी है उसको cannot, a party to the transfer cannot be accept, जो मतलब उसने या तो वो कैन इट शुड बी कैन नॉट बी एक्सेप्ट एज वेल एज रिजेक्ट और सिंगल ट्रांजेक्शन, ये नहीं होना चाहिए. इन अदर वर्ड उसे हम और भी कह सकते हैं, वाइल क्लेमिंग एडवांटेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द बर्डन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. ये शुड नॉट बी एक्सेप्टेड होना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिस पेंडेंस. लिस पेंडेंस, it means, take from the Latin maxim the meaning of lis pendens. Lis pendens means, it means the nothing. Lis pendens is nothing new should be introduced in a pending litigation. Pending litigation means ऐसा law जिसमें nothing should be introduced, उसमें कुछ भी introduce ना हो, और that property should be dispute. That property should be disputed property. And जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड हो
और साथ में दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट इज पेंडिंग litigation. It is called the disputed property. Disputed in the list pendants, it is coming the